I am retired district and session judge from Haryana cadre. I remained as a judicial officer and judge about 28 years. I joined my service in year 1980 and retired in year 2009. First of all, I want to tell you that I belong to a very small village, namely Durjanpur, which falls in district Hisar, near to temple of Kajla, village called Kajla. I say it was a very small village where only primary school was there, and initially I got my primary education from there. After that, I went to my mama's house from where I did my middle class, then matric class from Battukala. After that, I came to college, Government College Hisar, and passed out to BSc, non-medical science. Then I joined LLB. Meantime, I was also selected as a pilot in the Short Service Commission in year 1971, near about. But unfortunately, I did not join there due to some compelling circumstances from my family, as it was a short service commission only for 5 years. After that, I did my LLB and became an advocate. I remained as a good advocate for about more than 5 years. Then I joined service as a judicial magistrate in year 1980. And since then, I continuously connected with the judicial system. After my retirement, I am still doing the work of legal arbitration matters and other legal opinion, etc., to the sufferers, to the needy persons, and I never charge from any person about legal opinion. I am performing also a very civil system. I performing some civil system also, and joined a good institutions where I gave lectures on some social system. Legal system and social system both are connected with each other, and I explained the needy peoples. Even I visited in so many colleges and universities where I addressed on some criminal matters, criminal cases, and power of police and power of magistrate, and connecting with the judicial system. For example, in 8 March 2018, I was a chief guest in the Women's University there in Kanpur, in law faculty, or I explained where the police will join the people in false cases. To explain some sections also, like 148, 135 and 120B IPC, which are connecting with the people who are not really culprit, but police can involve them in some false cases. So these are the matters. Before joining of my service, I also remained a good advocate, having sufficient time, and gave many. I am from my family. I am habitual of hard working. I have always adopted a system of hard working and honesty, which get from my family. Before this, I tell my childhood system. My father is a
was a very simple person and illiterate person who were three brothers. They lived for so many years as joint family, and after my marriage they separated from each other, but all were very peaceful and hardworking persons, and we have very affection with them. They also, but also of the same view. But I can tell them my father was not of the view that I should continue my service, because he always believes in hardworking agriculture system and other words. Basically, my family was having agriculture system, having a good piece of land, and all were yielding the sufficient amount from there. But I was inspired some important people like Tahsildar, BDPO, who used to visit in school villages, and people were wandering about from there. Then I thought I should also occupy such position so that people may give some importance to me. So that was my inspiring people, and I continue my service despite the objection of my father, because what my uncle, one of the uncle was of the view that some वकील डॉक्टर घर के होना चाहिए, उसके ये एक वो था, तो इसलिए I became an advocate. But my father was not happy. Your father advocates are, बल्कि he tell me that you will tell a lie also, you will learn a tell a lie also. आप झूठ बोलना और करोगे, आप वकील बन गए. तो जब मैं वो जज सेलेक्ट हुआ, then he was become very happy और कहा कि भाई बेटा आप अपना इस प्रोफेशन को अच्छा रखना, किसी से इनजस्टिस न करना. That was my motive, and I remained always a very daring officer, daring judicial officer. मैंने वहाँ भी उस वक्त कहा कि जज हमेशा नीडर होना चाहिए. जज अगर डर के काम करेगा तो वो जज नहीं कहलाता. जज की एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है हमारे सिविल सिस्टम में ऑल्सो. और मैं कह जज एक भगवान की कुर्सी पर बैठा है, इस टाइप से आई एम नॉट ऑफ दिस कैटेगरी के मैं भगवान हूँ. बट विचार यही है लोगों का भी, ऐसी न्यायप्रिय चेयर पर बैठे तो आप अच्छे विचार बनाकर अच्छे लोगों को न्याय देना. तो मैंने यही सीखा. और बड़े इम्पोर्टेंट केसेस थे जो मैं पहले भी एक बता चुका हूँ कि मैंने पॉलिटिकल लीडर्स को भी मैंने सेंटेंसेस दिए जो काफ़ी हाईलाइट रहे हैं. इसी तरह मैंने आई आल्सो अवार्डेड डेथ सेंटेंसेस सो मेनी केसेस, 2 cases which were very heinous type of crimes committed by the culprit who committed 5 murders by committing rape upon children. So such type of action is the only for deterrent to the people who are doing wrong act. So I can say that a judicial officer should always be a honest and a daring person, and at the same time he also should be a bearing power. He should have been bearing power. अगर आप सुन रहे, हियरिंग एंड बियरिंग दोनों क्वालिटी एक जज के पास होनी चाहिए. जज अगर चेयर पर बैठ के गुस्सा खा जाए तो ही कांट डिलीवर द प्रॉपर जस्टिस. शांत स्वभाव, पीसफुल एटमॉस्फेयर, controlling to the decorum of the court, to consider the importance of the people and surrounding area also. जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस अवस्था में आप रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिस एरिया का जैसा क्राइम होता है उस टाइप के क्राइम्स को डील विद करना, उनके भावनाओं को देखना. उनके कोई आदमी क्राइम करता है तो किस वजह से करता है. क्राइम के भी रीजंस होते हैं, मोटिव होते हैं और एम्स होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. और मैं बताना चाहता हूँ कि न्याय, जस्टिस कोई चीज़ नहीं है कि आप डिलीवर कर दोगे ये ले लो ये जस्टिस है. दिस इज ओनली ए सेंटिमेंटल थिंग्स.
कि जस्टिस इन वे वी कैन से कि भी एक भावना जिसे कहते हैं, एक आपको कोई मुझे न्याय मिल गया, दैट इज़ एक आपके दिमाग में आ गई मुझे न्याय, मेंटल सेटिस्फेक्शन। और उसके लिए एक टेक्निकल ये है कि दुनिया के अंदर सभी गलत काम करने वाले मिलेंगे और विक्टिम्स ही होंगे जिनके साथ बुरा काम हुआ है, तो वो दोनों एक ही लाइन में आकर जज के सामने खड़े होते हैं भी हमें न्याय चाहिए। तो ऐसे हालातों में समझता हूँ जज को बहुत ही पीसफुल और एटमॉस्फेयर में अपने कूल माइंड से उनको सुनना चाहिए और सुनकर एक ऑनेस्टली एक अच्छा भी मतलब एक डिसीजन दिया अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के दायरे में रह कर हम वो डिसीजन देते हैं। और कई दफ़ा पुलिस इन्वॉल्व कर देती है इन ब्लक्स, जैसे कि कई ऐसे मेरे पास केसेस आए जिसमें 12 मुलजिम होते थे, तो हमें बड़ा डेथ एक की हुई है, दूसरे के मतलब इस टाइप से इंजरियाँ आई और तो ये नहीं कि डेथ जिसकी होती है, डेथ के अंदर 2 ही पेनल्टी हैं, या तो हैंग टू डेथ सेंटेंस और टिल लाइफ जिन मतलब लाइफ कारावास जिसे कहते हैं। तो उस मैटर में अगर 12 आदमी इन्वॉल्व है, डेथ हुई है, एक हुई है, और वो हालात किस हालात में, फ्री फाइटिंग में है या ग्रुपिज्म में है या कॉमन इंटेंशन में है या कॉमन ऑब्जेक्ट में है, ये इस टाइप से वो पुलिस तो बना के ले आएगी, बट जज की ड्यूटी है कि उसको एक ऐसे विचार से देखे। मैं आपको एक इस इन बिटवीन आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कोर्ट में आते हैं मैक्सिमम तकरीबन फॉल्स व्यू, मतलब अपने ग्राउंड असलियत कोई नहीं बताता कोर्ट के, पर तो असलियत जज को कोर्ट को निकालनी होती है उसके अंदर। ये एक आदमी 12 आदमी को इन्वॉल्व कर दिया, सर्टनली पता लगता है 12 आदमी, ये आदमी एक डेथ हुई और एक बंदे के वैसे चोट आई है दूसरे के, तो 12 आदमी तो भाई, तो इसमें हमें देखना है भाई इन 12 में क्या करूँ, सारा लाइफ तो हो नहीं सकती। ऐसे तो हमें बड़े ढंग से जजमेंट दिए जो बड़े सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड रही है, तो हमें उसमें जो है कि रियल कल्प्रिट नज़र आया उसको हमने लाइफ की, जो भी जैसे जितने भी 2 और बाकी रहे तो लेस किया। तो हमें न्याय तो सभी को चाहिए ना, न्याय तो मानते हैं कई दफ़ा डेकोइट्स हैं वो दे आर एम्स टू क्रिएट टेरर्स इन दी सोसाइटी। मोस्टली आपको मतलब जो एरिया है आपका यहाँ मेरे आई रिमेंड एज एडिशनल सेशंस इन सोनीपत, और दिस एरिया इज़ वेरी क्रिमिनल। एक गांव है राड़धाना विलेज है जो बिल्कुल क्राइम का वो गढ़ है वहाँ। एक ये यहाँ है आपके कुंडली मानेसर, इसी के ऊपर है गांव रसोई है। तो यहाँ ऐसे कई ऐसे क्राइम्स होते थे जो हमें बड़ा सोच समझ के फैसले करने पड़ते थे, और जिन हालातों में क्राइम होते थे वो हमें वाच करना पड़ता था। तो दोस्त मैं आई कैन टेल हमने लाइफ में वर्क इज़ वर्शिप का सिद्धांत चला है, और डू रेस्पेक्ट एंड हैव रेस्पेक्ट, ये मेरे सिद्धांत रहे हैं, और ये हमारे परिवार के सिद्धांत है, ये मेरे बच्चों के सिद्धांत है। और मेरे ये बड़ा बेटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के मैटर लेता है, वहीं गुड़गांव के अंदर है। तो मैं भी उनके साथ उनकी असिस्टेंट करता हूँ और उनके लीग अपना आर्बिट्रेशन मैटर्स वगैरह हम डिसाइड करते हैं इस तरह से, और बड़े शांति से हम अपना बड़े अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना ठीक। इट वाज आई इनहेरिटेड द सेम फ्रॉम माई एंसेस्टर्स एंड सिविल सिस्टम। और हर समाज के अंदर सिविल सिस्टम सही होगा तो पीसफुल रहेंगे। अगर वो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने चाइल्डहुड से ही ये पीसफुल एटमोसफियर देखा और वही हमने सीखा है। जिस घर में हर वक्त लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो बच्चा वही सीखेगा। होम इज़ दी फर्स्ट नर्सरी स्कूल, फर्स्ट नर्सरी स्कूल के जो भी बच्चा सीखे वो माइंड में रहेगा थ्रू आउट लाइफ। तो मैं तो अब भी समाज में जाता हूँ, बतलाता हूँ लोगों को भी अपने घर को सुधारो। पहले अपने घर के अंदर अगर शांत रखो, शांति से रहोगे तो आपके बच्चे भी अच्छी वो समझेंगे और चीज़ के मतलब पीसफुल लाइफ व्यतीत करेंगे। तो हमारा तो हमेशा यही सिद्धांत रहा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क मी। आई वांट टेल यू अबाउट 50 years back, at the time I becoming young, grown up young, उस वक्त जब क्या है चाइल्डहुड में मैरिजेज हो जाती थी,
हमारा भाई मेरे से बड़ा है, उसकी बच्चा 12-13 साल की थी, उसको शादी कर दी थी। मेरे से छोटों की जो हमारे चाचा के बच्चे उनकी भी अर्ली मैरिज कर दी थी। परंतु मैं एक ऐसा बंदा था, हमारे परिवार में पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा था मेरा, और मैं ये कहता रहा भैया मुझे पढ़ाओ, आप मैरिज की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी मेरे चाचे और कहीं कभी रिश्ता कराए, कभी कुछ कराए, तो मैं अवॉइड करता करता मैंने बीएससी पास कर ली थी। इसी चक्कर में कोई रास्ता छोड़ा, कुछ कैसे किया, बागी साहब हो गया, मैं इस तरह से मैं आई डू मतलब जब मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया, कानून मतलब एलएलबी ज्वाइन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो भी मैंने कहा अभी मुझे अभी आप मुझ छेड़ना नहीं। मेरे चाचा था मेरे जो हेल्पफुल करता था, वो कहा इस लड़के को छोड़ो, मैं बाकी तुम सारे ब्याह कर लो। दैट वाज द स्लोगन ऑफ आवर फैमिली कि भाई तुमने मैरिज करने किसी के अपने बच्चों को करा लो, परंतु इसको मत छेड़ो। ये तो देख लो, मैं अब साथ पढ़ा और बड़ी मेहनत की। मैं एक ऐसी मेरी जो कास्ट है, मैं कास्ट बतलाऊँ, जांगीर समाज है जो मोस्टली लकड़ जो ना वुड का काम बहुत करते हैं। पर हमारा घर तो ऐसा था कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम में ज़्यादा था, बल्कि क्योंकि हमारे पास 1970 के अंदर हमारे साथ ट्रैक्टर था और 80 एकड़ ज़मीन थी हमारे पास। तो उन्हें समझो कि वी वर ऑफ। और मेरे पिताजी की ऐसी इमेज थी, कॉमन था गांव के अंदर, बगैर इलेक्शन सरपंच बना गांव के अंदर। तो हमारी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी हमारी, उसके लिए हमने अपने सिस्टम को कंटिन्यू रखा और अल्टीमेटली आई बिकेम एडवोकेट। और फिर मैरिज की बात आई तो मैरिज के अंदर क्या कि अब मैंने एक ही नारा लगा दी, एजुकेटेड लड़की होनी चाहिए समाज में। और बाहर इतनी लड़कियां कौन पढ़ाता था उस वक्त, एजुकेशन नहीं थी हमारे एरिया में तो इतनी। तो हमारे रिश्तेदारी में ये लड़की, मेरी वाइफ जो है श्री गंगानगर से बिलोंग करती है, और उनका फादर कोई बाय पर चांस हमारे पड़ोस में कोई व्यापारी था जिनकी शॉप थी, उनके पास बैठा। तो वो बोर्ड लगा हुआ एडवोकेट का, JS जांगड़ा बोर्ड लगा, तो उसको पढ़ के भाई हमें भी कोई लड़का बताओ हमारे लड़के। तो उस हिसाब से वो आए और हमारा मैंने देखा, इन्होंने देखा, मैं वहीं रिश्ता करके आ गया। तो वी नेवर डिमांडेड एनी डाउरी, वी वर अगेंस्ट दैट सिस्टम। डाउरी सिस्टम हमेशा मैं अगेंस्ट रहा हूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो ये हमारी मैरिज जो है बड़े मतलब ऐसे स्टेज में हुई कि ना वो ओनली हम 15 आदमी जाकर मैरिज कर लिया। मैंने कहा भाई कोई ज़रूरत नहीं, ना आप कोई खर्चा करो ना हम खर्चा करेंगे। दैट वाज माय प्रिंसिपल, और यही इसी सिद्धांत पर चले थे हम। और शहर के अंदर हमारी शॉप थी, शॉप कम फ्लैट, और पास में गांव मेरा 15-12 किलोमीटर पड़ता था। हम डेली आ जाते थे। कई दफ़ा एज एडवोकेट मेरे प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चली और कुछ फाइनेंशियल सिस्टम हमारा ठीक था। तो हमने अपना मकान भी वहीं बना लिया था मैंने अपने एडवोकेट टाइम में। जब मेरी अपनी प्रैक्टिस से मकान बना तो मेरे उस्ताद जी कहने लगा तुमने बड़े पैसे कमा लिए, क्या कर लिया। तो ये मेहनत का फल था सारा। फिर मैं यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हो भी मुझे भी इस कुर्सी पर बैठना है। जब जज के आगे प्रेयर करते थे, माय लॉर्ड मेरे जनाब दिस इज़ सो राइट, यहाँ तक कहना पड़ता भी एक गरीब आदमी के अगर हिम्मत वाला तो कोर्ट में बहुत कम आते हैं। जो लठेत होते हैं ना, जो जिनका पावर्ड पर्सन होते हैं, जो डेयर एंड डेवलिंग होते हैं, वो कोर्टों में कम आते हैं। वो अपना वहीं निपटारा कर देते हैं पब्लिक के, किसी थप्पड़ मुके आज या क्राइम पर मुके। परंतु गरीब आदमी हमेशा कोर्ट में आता है, सहारा लेता है। तो हम कहते थे भी इसको न्याय मिलना चाहिए सब, तब कहीं। तो मैंने प्रिंसिपल बनाया कि मैं जज बनूंगा तो हम इन गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों को हम रिलीफ देंगे। बड़े डट के रिलीफ दिया हमने लोगों ने। आज तकरीबन जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ तो वकील लोग मेरे फ़ैन हैं। जहाँ भी मैं रहा हूँ वकीलों में मेरे हमेशा मेरे फ़ैन रहे और बोले जज हो तो ऐसा ही हो, अदरवाइज क्या। हमने कभी कंजूसी नहीं बरती, रिलीफ देने में कभी कंजूसी नहीं बरती, और फिर सज़ा करने में बड़ी कभी कंजूसी नहीं। क्योंकि बदमाश आदमी के लिए हमारी कलम हमेशा सख्त रही है। ये तो हमारे जुडिशल सिस्टम का था। रही बात अब सोशल सिस्टम हमारा ठीक है और हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरे बच्चों से हम साथ रहते हैं। हमारी ये पुत्र वधू है रेनू, इन्होंने अपना आपके साथ ज्वाइन किया तो हमें कोई वो बात भी नहीं है, इतराज़ भी नहीं है। अच्छा है, चलो बच्चा सीखेगा। ठीक, आपको बतलाऊँ कि हाई कोर्ट से भी हमारे पास टारगेट होते थे भी महीने में कितने केस करने होते हैं, टारगेट होता है। तो देख लो आप अंदाज़ा कि कंटेस्टेड केसेस कितने करने होते हैं। तो हमने हमेशा
हाई कोर्ट के नॉर्म से मैंने काफ़ी ज़्यादा देता था, क्योंकि जो फास्ट जो हमारा वर्किंग का जो है ना, हमारा सिस्टम बड़ा फास्ट था, और जजमेंट लिखाने का भी सिस्टम हमारा बड़ा है कि वो कई दफ़ा तो लोग उलझ जाते हैं, लंबी जजमेंट लिख दिया, 100 पेज की लिख दी, ये कर दिया। मेरा कभी नहीं, हम जिस्ट बनाते थे, हम सोचे गो थ्रू हो गए फाइल, हमने फिर अपने फैक्ट्स समरी में क्या करते, समरी इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप फैक्ट्स पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो अपनी समरी बनाकर जजमेंट दो। तो हमारी 20-25 पेज से हमें कोई जजमेंट ऊंची नहीं की। हाईएस्ट मर्डर के मतलब डेथ सेंटेंस में मैंने भी 25-30 से ऊपर कोई जजमेंट नहीं मिलेगी मेरी, क्यों हम जिस्ट बनाते थे। और जो कंक्रीट जो आपकी एविडेंस थी और एक जो सॉलिड बात होती वही हम लिखते थे। और ज़्यादा बढ़ा के लिखने से 100 पेज पढ़ाते, आदमी पढ़ता ही थक जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं अपने जजों, अपने जो नए जजेज आते थे हमारे जो नीचे काम सीखे, उन्होंने ये कहा भैया जजमेंट अच्छी लिखो, थोड़ा शॉर्ट लिखो, ताकि पढ़ के पता लगे भी इसके ये विचार है। पढ़े जाओ विचार ही आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो जजमेंट क्या करेगी, ऐसे लोग थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो मैं ये इसमें रहा हूँ। और फैसले में तकरीबन देख लो आप थ्रू आउट लाइफ क्या सबसे 28 ईयर्स एज ए जज रहा, तो जज हर 50 केसेस महीने में 50 कम से कम वैसे तो नॉर्मल कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और 100 में जाते थे, पर 50 की एवरेज जाती थी हमारी कम से कम महीने के अंदर। मतलब डेली का 1-2-3 केस हो जाते, 50 के आसपास हो जाते थे। तो टेल यू कि माई एम इज़ वेरी क्लियर एंड फ्रैंक। मैं कोई गुच वाली लाइफ नहीं जीना चाहता, नहीं मैंने कभी जिया, और नहीं मैं किसी से इस टाइप से बात कर, भाई हम ऐसे स्पष्ट कर देते हैं बात, कोई हो चाहे। एम मेरा लाइफ के अंदर हमेशा ये एम था कि सक्सेसफुल हूँ, मैं एक अच्छा सिटीजन बनूँ, अच्छा देशभक्त बनूँ। मेरा फर्स्ट एम था कि आई शुड बी ए पायलट, क्योंकि मेरे पास NCC एयरविंग थी, मेरे पास हमारे हवाई जहाज़ें सीखी थी, हमारे एक फैसिलिटीज़ थी वहाँ पुष्पक विमान चलाने की हिसार के अंदर। तो आई रिमेंड बेस्ट कैडेट आई, और मुझे वो जो ना एनुअल फंक्शन होता है कॉलेज में, उसमें बेस्ट कैडेट का मुझे वो मिला भी था। ठीक है, मेरे पास अब भी घर पे है। तो हमेशा नीट एंड क्लीन में विश्वास रखा, मेहनत में। हमारे उस एरिया में एजुकेशन नहीं थी, आज से 50 साल पहले स्कूल भी मिडिल तक नहीं, प्राइमरी तक स्कूल थे, हमें बहुत दूर जाना पड़ता था। और नहाने के लिए भी हम कई दफ़ा पानी बाहर रास्ते में, और पानी की बड़ी कमी होती थी हमारे पास, तो हम हाथों से खाना बनाकर और पानी ला कर, बाहर प्राइवेट हॉस्टल भी नहीं होते थे, तो मेहनत करके आगे निकले। तो हमारी एक ही है, हमें पढ़ के कुछ बने, कुछ समाज के अंदर दिखाएं कि हम बने कुछ न कुछ। तो ये इसी एम के साथ हम चले। और हम आई एम वेरी, मैं कह सकता हूँ कि मैं एक बड़ा सेल्फ मेड पर्सन। मैंने किसी की भगवान की हेल्प ली है, और बाकी अपने आप जिसने हेल्प ली है वो तो देते है, सारा तो एक का सीढ़ी बनानी पड़ती है इंसान को, रिलेशन बनाने पड़ते हैं। पर तो हमें यहाँ तक पहुँचे, मेहनत से पहुँचे हम। अब भी मेहनत कर रहे हैं, और तो पहले भी मेहनत करते थे। तो हमेशा हमारा है कि साफ सोच लाइफ जीवो। एम ये है कि आदमी को न्यायप्रिय बने, सोशल सिस्टम में सही बने, झूठ का सहारा मत दो, झूठ को आगे बढ़ाओ मत, गुंडागर्दी के सहारा मत दो, उनको रिबूक करो। जो बच्चे हमारी एज है, हम उनको डायरेक्ट करो तो झगड़ा हो जाए, प्यार कह के नहीं बेटा ऐसे नहीं क्या, तो हमारा ये ड्यूटी बनती है यंग को समझाना। कॉलेजों में जाना चाहता हूँ, मैं जाता भी हूँ, समझाता हूँ भी। हमारे एक बेटी जो है ना, जैसे आज सिस्टम हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर मैं बहुत जोर देता हूँ। और बेटी इसको पहले आप बेटी को पैदा तो होने दो, बीच में टर्मिनेट कर देते। हमारा सिस्टम ये है कि आप बेटी को पैदा करो, उसके बाद प्रोटेक्शन दो, उसको अच्छे पालो पढ़ाओ, एजुकेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए लड़कियों के बीच में, लड़कों के अंदर। अच्छा, घर में एक लड़की नहीं होगी तो वातावरण भी दूषित होता है, एक अच्छा वातावरण नहीं बनता। वो एक जैसे कैसे डिसेंसी के जैसे कहते हैं, डिसेंसी इंग्लिश शब्द है, वातावरण दूषित स्वच्छ वातावरण कहते हैं डिसेंसी। तो एक वो जब भी आएगी आपके घर में बच्ची लड़की होगी, हमारा एक रिलेशन कम होता है। लड़की नहीं होगी तो बच्चे बुआ किसको कहेंगे, बहन किसको कहेंगे, तो ये है ना। तो ये बहुत जो कंप्लीट हमारा सोशल सिस्टम वर्ल्ड के अंदर सबसे बढ़िया है। रिलेशंस हमारे जो है ना,
जुड़ एक डायरेक्ट है। जैसे अंग्रेजों तो कहते हैं ये ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ फलाना, हमारा सारे ये चाचा भतीजा भाऊ बुआ फूफी बहन भाई जीजा साली, ये हमारा तो एक ऐसा बना हुआ है जो किसी वर्ल्ड में नहीं है, किसी कहीं भी नहीं है जो हमारे सिस्टम में। तो हम इससे आवर सिस्टम इज़ वेरी रिच और टूटने भी नहीं देने हम चाहते हुए। इनकम्प्लीट परिवार हो जाता है अगर लड़की नहीं होगी तो। लड़की होना घर में बहुत ज़रूरी है। लड़के अकेले लड़के से बहू कहाँ से आएगी, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, ये हमारा एम रहे हमेशा। डिस्पिरेशन है हम रहते। तो ये ज़िंदगी हमेशा एक स्वच्छ वातावरण में जीनी चाहिए। और यूथ को मैं अभी कहता हूँ मेहनत करो, जितनी मेहनत करो उतने भगवान फल करे। मैं उस सिद्धांत को बड़ा मानता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में ये जो दिया उपदेश कि आप मेहनत करते रहो, कुदरत अपने आप आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हम उसको भी सिद्धांत पर मानते हैं। हम किसी पार्टिकुलर धर्म को विरोध नहीं करते। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ भाई, ज़्यादा ये जो आजकल मैं इस पर लिखता रहता हूँ भाई, मांग के खाना, जो घर नहीं बसा सके वो साधु पीले कपड़े पहन के गलियों में फिर रहे, मांगते फिर रहे। आई डू नॉट लाइक दिस। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ भाई, जवान हो तुम, कमा के खाओ। ये नहीं कि आप पहन लिया फिर मांगने लगे गलियों में। चलो ऐसा कोई परिस्थितियाँ हो, कोई ऐसी है जो कोई ऐसा करे भाई लीन हो, जिसको कोई ऐसा चमत्कार लग गया, वो उसको तो हम संत मान सकते हैं। परंतु साधु संतों ने अपना जो एक नाम है वो इंडिया के अंदर ख़त्म कर रखे है। जो देख लो आज के जितने भी राम रहीम देख लो, दूसरा वो एक वो जो पानी फेंका करता है, यहाँ भी दिल्ली में फेंकता था, वो क्या नाम उसका, जो बूढ़ा जो रेप केस में इन्वॉल्व हुआ था, इस टाइप बहुत है। यहीं भी एक चला रहा था, कोई दिल्ली के अंदर पकड़ा था वो, इस टाइप। तो साधु तो बदनाम हो चुकी। तो इससे उनको मतलब एक सिस्टम से बाहर निकालना, तो ये मैं तो ये कि बड़ी हुई जिनसे घर गृहस्थी नहीं चले वो साधु बन गए, इसलिए उनको क्या इम्पोर्टेंस थी। ठीक है ना, मानते हैं चलो हमारा देश है, परंपरा में रह रहा, ऋषि मुनियों से देश रहा, पर तो वो ऋषि मुनि भी तो बनना चाहिए जो उन दिनों के ऋषि मुनि थे, जिनको ज्ञान सभी चीज़ का था। उनको क्या क्या ज्ञान था, एजुकेशन के सब चीज़ की लिखा ज्ञान था। उनको आर्ट थी, फाइटिंग की आर्ट थी। उनको जो बच्चे पढ़ते थे उनको सिखाते थे कैसे आपको उनको सारी आर्ट, पहलवानी की भी आर्ट उनके पास थी, फाइटिंग की भी आर्ट थी, एजुकेशन की भी थी। तो वो चीज़ यहाँ हमारे साधु मुखा है, धोना लगाए बैठे, जो माथे में तिलक कर लिया। आई डू नॉट लाइक दिस। मेरा ये जोर कहता हूँ कि बीइंग ए एनसीसी कैडेट और एक अच्छा खिलाड़ी भी मैं कह सकता हूँ अपने आप। आई रिमेन ए वेरी गुड कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ अपने टाइम में, अच्छा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं ऐसे फिट इंसान को सेहत, अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ को देखो, कई किसी ने कहा कि इफ 2-3 लाइफ के 3 सिस्टम होते हैं, तो हेल्थ उनमें से दूसरे नंबर आप आते हैं। पहले आपका है आपका कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर सही है, वो आपकी रेपुटेशन देगा आगे सोसाइटी में। आपकी हेल्थ सही है तो आपका कैरेक्टर भी ठीक होगा, आपकी इमेज भी सही होगी, आपका वातावरण सही होगा, आपका फेस वैल्यू भी सही रहेगा, आप सोच भी अच्छा होगा। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये आपका सिद्धांत है। तो अगर हमारा फिजिक्स सही होगा तो हम सब कुछ सही है। अब आप तो अंदाज़ा लगा लो कि मैं ये ज़्यादा प्रेज नहीं करता, तो मैं कभी भगवान की दया से बीमार नहीं है, बुखार मुझे नहीं चढ़ी कभी। मतलब आई रिमेन ऑलवेज हैप्पी, खुश रहता हूँ। सुबह 6-5 बजे अकॉर्डिंग टू वेदर, अगर गर्मी सर्दी है तो मैं राइट 6 बजे उठ जाता हूँ, 6:30 बजे सर्दियों में बाहर आ जाता हूँ और रेस लगाता हूँ, दौड़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योग करता हूँ, पूरा 1.5-2 घंटे लगाता हूँ अपनी बॉडी पर। उसी तरह आस्ते आस्ते गर्मियों में राइट 4-4:30 बजे उठ जाता हूँ, फिर वही रेस लगाता हूँ। तो मैं तो थ्रू आउट लाइफ रेस लगाई है। और मैं ये कह देता हूँ कि मेरी एवरेज 10 किलोमीटर की एवरेज थी मेरी जॉगिंग एंड रेस थ्रू आउट, जब से मैं जज रहा हूँ। तो अगर मैं सारे अगर जोड़ के देखो तो एक ये ग्लोबल चारों धरती के चारों तरफ एक राउंड लग सकता है। मैं इतना सफ़र कर चुका हूँ लाइफ के अंदर। और
मैं तो अब भी बच्चों को सबको कहता हूँ कि बाहर निकलो, अपना घूमो फिरो, थोड़ा पता लगे। अच्छा, अब मैं पहले कभी देखो हमारी सर्विस में ऐसी तो मैं विदेश नहीं गया था पहले कभी, बहुत कम गया ही नहीं असल में, इतना बात है क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना, एक जजों पर लोग डाउट बहुत करते हैं। हमारे खुद का डिपार्टमेंट डाउट करता था, कभी आपने कोई कह दिया मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ तो पहला क्वेश्चन आता भी चलो ये LTC तो ले रहे हो आप, बाकी पैसे कहाँ से ले आओगे? उसी में पैसे जवाब देने में लग जाते थे। वो LTC का टाइम निकल जाता था। मैंने तो इस बीमारी से कभी LTC आज तक थ्रू आउट लाइफ मैंने ली नहीं है, मैं सही बात, और नहीं मैंने आज तक लाइफ के अंदर कभी मेडिकल क्यों उसकी ली है, नेवर। अपने सिद्धांत लोग झूठा बिल बना के मेडिकल लेते रहे, मैंने कभी ये नहीं लिया। कभी मैं अपने मेडिकल के लिए, हेल्थ के लिए मैंने मेरा ये आज सिर दर्द है, मैं बीमार हूँ, मेरे ये दवाइयाँ चाहिए, मैंने इसमें खर्च किया, नेवर। हालांकि लोग 10-20 हज़ार रुपये झूठे बिल बनाकर जुडिशरी के अंदर ऐसे अफसर थे तो उन्होंने लेते रहे, मैं आपको बताता हूँ आपको। परंतु हमने ये अपना पूरा सिद्धांत था, गलत काम मत करो किसी तरह का, स्वास्थ्य सही रखो। अगर झूठे बिल है वो सारे बीमारी रहे, हाँ वो तो झूठे जिन्होंने बिल बना के रखे वो झूठे बीमारी रहे, नहीं इन लाइफ भी बीमारी हो गई फिर तो ये बड़ी दिक्कत आती है इंसान को कि आज सच सही ठीक है। डिपार्टमेंट ईटिंग हैबिट आप होता हूँ मैं, देखो हमारा एक लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, होम से। हमारा एक बड़ा सिंपल वातावरण था, शाम को जो है ना खिचड़ी बनती थी, बाजरा और उसकी चने और मूंग मोठ वगैरह डाल के बढ़िया खिचड़ी बनती, दूध, अच्छा भैंसे दूध हमारे बहुत होता था। मेरा एक चाचा था जो, मेरे पिताजी और 3 भाई थे, तीनों का डिपार्टमेंट अलग रहता था। भाई भी मेरा उसी में ज्वाइन कर, क्योंकि खेती ज़्यादा थी, ज़मीनें ज़्यादा थी, तो मेरे पिताजी और छोटा चाचा वो दोनों खेती तो तकरीबन सभी संभालते थे। और तो एक बीच का चाचा था, वो भैंसे बहुत रखता, 5-5, 6-6 भैंसे, दूध बहुत होता था हमारा। और घर का सिस्टम, हमने कभी दूध नहीं बेचा। मेरे को याद है, मैं छोटा सा था, हमारे गांव में एक रामलीला वाले होते हैं, रामलीला प्ले करते हैं गांव पहले। आजकल तो सिस्टम चेंज है, आप यूपी में और कहीं जो रामलीला बड़े पहले होती है, जैसे दशहरे के टाइम होती है। तो किसी बंदे को दूध चाहिए गांव में, तो गर्मी के दिन थे, जेठ साठ में दूध नहीं होता था, बड़ा दूध भैंसे टल जाती थी। तो फिर एक ना कभी फलाने के जाओ, मेरे पिताजी का नाम लिया भिखाली के, उनका जाओ, तो वो बुला के बोले ले तू बेटा ऐसे कर, उसने उस वक्त 50 पैसे डाले मेरे को, ये दूध गिलास। वो एक जना बोले भैया दूध नहीं मिलेगा, पैसे वापस ले दे, यहाँ तो दूध मिलेगा तो मुफ्त ही मिलेगा। तो हमारे घर की तो ये रेपुटेशन थी, ठीक है ना। तो हमने फिर वहाँ से सब कुछ सीखा, तो हेल्थ के ऊपर भी, फिटनेस को भी वहीं से सीखा, ऑनेस्टी वहीं से सीखी, हार्ड वर्किंग बनना वहीं से सीखा। तो हम बड़ा अच्छा लाइफ व्यतीत किए, और ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, वो हम तकरीबन पहुंचने की कोशिश की। हाँ एक चीज़ है, मैं पॉलिटिक्स में फेल हो चुका, मैं आफ्टर रिटायरमेंट पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी, और मैंने इसके ऊपर लिखा भी है कि मैं अपनी लाइफ में जहाँ भी हाथ लगाया, चाहे बिजनेस किया हो मैंने, आई ऑल्सो हैविंग ए बिजनेस ऑल्सो, स्टिल आई एम रनिंग ए plant of screw fastener plant I installed here after my retirement also. I am running that. But मैंने ये लिखा कि where I joined in which field I remained always successful, but I failed in politics. Politics का गेम हमें समझ में नहीं आया, तो इसलिए I left this. तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स का, हाँ सोशल में जाता हूँ, हम जाते हैं जहाँ भी दोनों बात हमें अच्छी लगती है वही बात कर देते हैं। अगर कोई पार्टियाँ हैं जैसे आजकल दो वाद विवाद चल रहे हैं, हमें अच्छे लगे तो उसकी बात कर देते हैं। ये नहीं कि हम किसी के इंटेंशनली किसी क्रिटिसाइज नहीं करते, इंटेंशनली किसी के ज़्यादा प्रेज नहीं करते। हाँ जो देश के हित में जो बात करता है वो हमें ज़्यादा पसंद है। आज के दिन सीधी बात जानते हैं, जो भी देश के यूनिटी के लिए काम करता है, देश की अच्छे कामों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के भी काम करते हैं, वो हमें आजकल भी फिटिंग है और हम उसकी प्रेज भी करते हैं।
नेशन देश, अगर हम देश हमारा रहेगा तो हम रहेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे। क्यों बीइंग आई जज एंड बीइंग इन जुडिशल सिस्टम, हमने काफ़ी एक्ट्स पढ़े हैं, आईपीसी के भी पढ़े, सीआरपीसी के पढ़े, क्रिमिनल साइड से पढ़े, सिविल साइड से पढ़े, और दूसरे अदर स्मॉल एक्ट्स भी होते हैं जो सभी तरह के। जो जब एक्ट बना हमारे सामने, जो बना है, कई चीज़ें उनका मिसयूज भी हुआ है। ये जो है लिव रिलेशंस का एक्ट जो है ना, उसमें एक्ट क्या ये दिस इज सेक्शन इन द उसमें आ जाता है, एक एक्ट बने डोमेस्टिक उसके अंदर आता है वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ही पार्ट ये इसमें आता है, ये जो लिव रिलेशंस का। ये सेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा, और रीज़न बीइंग क्यों नहीं अच्छा, चलो सरकार ने बना दिया, परंतु ये एक यूथ को ऐसे अंधेरे में ले जाके डालने लग रहे हैं। यूथ आज यूथ के ऊपर दुनिया यूथ हमारा फ्यूचर है देश का, यूथ हमारा देश के लिए सब कुछ कर सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते तभी कहता है हमारा यूथ, हमारा जवान, हमारा देश यंग है, हर जगह उनकी एक बातें होती हैं जो हमें वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। अगर हम उन्हीं बच्चों को गलत ट्रेडिशन में डाल देते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। ठीक है, 18 साल का बच्चा, लड़का लड़की दोनों यूथ हो गए, हम कुछ नहीं कह सकते, उनके वो मर्जी के मालिक होते हैं, वो जहाँ रहना चाह रहे हो। परंतु एक जो लिव इन रिलेशंस का एक जो सेक्शन डाला है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, वो अच्छा नहीं, इसलिए नहीं अच्छा, उसने हमारे सिस्टम को ख़राब कर दिया, वातावरण को ख़राब होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कांटेक्ट में आया शिवा दादू, जो अब मेरे बच्चों की तरह समझता हूँ, मैं फ्रेंड भी मानता हूँ इसको, क्योंकि हम इनसे भी सीखना है कि इन्होंने जो पिक्चर बना रहे हैं धारा 376, वो एक पब्लिक को एक मैसेज दे रही है कि भी किन हालात, ये हालात क्यों बनते हैं और इनको कैसे इन हालातों को रोका जाए, यूथ को इस ऑफेंस को डाउन लाने के लिए, और लोगों में डिटरेंट इफेक्ट होना चाहिए इसका, कोई इसमें डर लगे कि ये हो गया तो ऐसे होना चाहिए। तो नसीहत देने वाली ये पिक्चर बन रही है, मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि एक यंग लड़का हिम्मत करके ये चीज़ें बना रहे हो और अपने नीचे से चल के ऊपर की ओर उभरने लग रहा है। तो ही इज़ वेरी डूइंग वेरी कमांडेबल जॉब एंड पब्लिक को एक अच्छा मैसेज दे रहा है। तो ये भी एक पब्लिक सेवा है, तो मैंने इसमें भी अपना थोड़ा योगदान दिया। मैंने महसूस किया भी इसके साथ मैं अपने विचार रखूं तो पब्लिक में मेरे विचार आएंगे, लोग समझेंगे जज साहब यहाँ से देखो इनके साथ लगे, एक अच्छा काम हो रहा है, तो मैं भी एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो इन व्यूज़ के साथ हम आपका धन्यवाद करता हूँ। नाउ को रखा इसको अपना एक अच्छी इमेज बना कर अपने इसमें बनाओ, पुलिस ऑफिसर का आप किरदार कर रहे हैं और सक्सेसफुल रहो इसके अंदर, और बढ़िया डेयरिंग डेवल बन के दिखाओ कि भी हम ये कर सकते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ लेडी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अंदर आती है ये, तो आदमी को सीखना चाहिए। एम्पावरमेंट है, अगर हम खुद मजबूत होंगे, वुमेन मजबूत होंगे तो सब कुछ है। उनको एक्ट भी आना चाहिए, हाउ टू डिफेंड हर सेल्फ, अपने दम सेल्फ जो भी कितने करने थे। तो हमारी बेटी में सारे गुण हैं, मैं उसको बड़ा प्रेज करता हूँ।